now an international artist. He has performed in multiple platforms and he teaches himself, and more performance that is going to happen. And I'm not going to tell about that performance because that is a big surprise. Wait for the surprise. Hariharan sir, please come on the stage to felicitate you. Amongst these two, one is able and one is differently able, that is, he is visually challenged. And the person I am talking about is... Okay, now let me tell you his achievement. So this is Pritesh, he is his choreographer. Okay, this is Pritesh, hard work. So, he is an MBA topper. Okay, an MBA topper. लोग मुझे लंगड़ा लंगड़ा बुलाते हैं, बट मेरी पहचान लंगड़ा नहीं है, मेरी पहचान अलग है। मेरा खुद की एक पहचान है, खुद का एक नाम है। मेरा नाम गुलशन है। तो प्लीज किसी भी डिफरेंटली एबल को लंगड़ा या उसके डिसेबिलिटी से ना बुलाकर उसके नाम से और काम से बुलाया जाए।
from Delhi to receive the award. Anup had come all the way from Bangalore to receive the award. So we are so honored and privileged to have such amazing people with us here in this venue today. Thank you so much, Suraj. 100% hearing and speech impaired girl. She was dancing without hearing the music. Thank you so much for having us here this evening, and we really feel honored. Got to see some wonderful performances and to hear some wonderfully inspirational stories. I really feel blessed to be here this evening, and a big thank you to Drishya Trust and Geeta ji. Thanks a lot. Thank you. It's been a very memorable evening for us and something we'll always remember and cherish. I want to specially thank Geeta ji and Drishya, Hariharan ji and all the guest performers who are here and the audience that is here. And we have just done a little bit with Drishya. Geeta ne bahut taarif kar di, but a year and a half back when we started teaching the students, I just want to say one thing, that we have all 7 days we are teaching online in the pandemic. One of the best batches is this one, which we have.
They are amazing singers. Geeta just named two of them, Arif and Mehraj. But there's Netra and there's Bemaj. All of them are so good that very enthusiastic, and they are better than the other students. That's really great, you know. Because I feel they have that, ऊपर वाले ने कुछ एक्स्ट्रा दिया उनको, बहुत अच्छा गाते हैं. So I and Anand, we are working hard. Geeta ji is also there. We are planning to release an album with them. First we'll release a single, and then we'll try and do an album with each one of them. Let's hope that happens soon. Thank you. God. Thank you so much, sir. Thank you. आपका स्वागत करते हैं एक ऐसी जोड़ी जिन्होंने बॉलीवुड में धूम मचा दी अपनी 200 से ज़्यादा फिल्मों में, जहाँ तक मैं समझता हूँ. जी हाँ, और कयामत ढा दी मैं कहूँगा. तो आप कुछ कहना चाहेंगे एक बहुत ही यादगार इवेंट में, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज इतना मज़ा आया, मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैं बम्बई में था और यहाँ आ पाया. और गीता जी को और दृश्य ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा. हम लोग, मैंने जैसे कहा कि दिस इज़ अ मेमोरेबल डे, मतलब आज का दिन जो है वो बड़ा मेमोरेबल है हम लोग के लिए. और मैं स्टेज पे ये बोलना भूल गया, आनंद जी बोल दिए थे, बाकी लोग बोले कि परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छे थे, वेदर सिंगिंग या डांस या जो जितने परफॉर्मेंस देखे बहुत पसंद आए. गीता जी के बारे में वर्ड्स नहीं है हमारे पास बोलने के लिए, बिकॉज वो जो कर रही हैं, आई विश देयर वर थाउजेंड्स ऑफ मोर गीताज इन आवर कंट्री, सीरियसली. एंड हम लोग इनसे जुड़े करीब 1.5 साल पहले जूम पर, और अभी हम चाहते हैं कि इनके साथ हमेशा जुड़े रहें, और हमारी तरफ से जो भी हम कर सकें इस फाउंडेशन के लिए, दृश्य के लिए, वो हम ज़रूर करेंगे. और बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं हम लोग. वो तो आज देखने से ही पता चल गया कि मतलब अनइमेजिनेबल, नो वर्ड्स आई हैव फॉर देम. एक्सेलेंट वर्क. एक और सवाल पूछना चाहूँगा, आपने कितने ही सैकड़ों गाने कंपोज किए हैं, कितने लोग, कई लोगों को प्रमोट किया है. आज का जो एक इवेंट है, एक जीवन का संगीत इसके अंदर छुपा हुआ है. इसके बारे में खास करके जिनको, खास करके गीता जी ने इन लोगों के अपने डेडिकेशन से, डिफरेंट डेडिकेशन मैं कहूँगा, डिफरेंट, बट जो वहाँ बार यूज़ और यहाँ पे डेडिकेशन आपका टोटली डिफरेंट है. तो गीता जी के बारे में, उस इवेंट के बारे में, खास करके संगीत के परिप्रेक्ष्य में. देखिए, डेडिकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, और जब कोई डेडिकेटेड होता है तो वो दिखता है, जो आज हमें दिखा. इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती. नहीं, इतने लोगों को मौका मिल रहा है परफॉर्म करने का, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और हम लोग इन गीता जी के साथ जुड़े, तो हम भी जो अबाउट 8 स्टूडेंट्स को जो सिखा रहे हैं आनंद मिलिंद एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, इतना टैलेंट है, और वो 8 सिंगर इतना इम्प्रूव कर गए 1.5 साल में, जिसकी वजह से आज हम लोग ने ये अनाउंस किया कि इनका एल्बम हम ज़रूर रिलीज़ करेंगे, बनाएंगे. थैंक यू. मैं उमेश मालवीय स्वागत करता हूं हमारे चैनल की ओर से. आप न केवल अच्छी ऑर्गेनाइजर सिद्ध हो गई हैं, एक अच्छी एंकर सिद्ध हो गई, बल्कि एक पूर्ण समर्पित एक समाज सेवक भी हैं, मैं ये कहूँगा. आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली मैं बचपन से ही बहुत इमोशनल रही हूँ. मुझे लोग मजाक उड़ाते थे कि मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ. तो जैसे जैसे ज़िंदगी आगे, मैंने खुद भी एक बहुत ही टफ बचपन देखा है, जहाँ पे कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आया था कि 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था. तो वो टाइम में मैं बहुत मैं जब अराउंड 12 साल की थी, तभी से ही मैं काम कर रही हूँ. मतलब मुझे काम करना पड़ता, ऐसी नौबतें आती थी कि जहाँ पे काम करना पड़ता था, खुद के फीस खुद पे करती थी. तो तकलीफ क्या है. और स्कूल में जब जाती थी तो दूसरे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, तो मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हुआ करते थे. तो क्या होता है, लोग जब मजाक उड़ाते तो उसका मतलब क्या होता है, लोग जब आपको अकेला कर देते हैं उसका मतलब क्या होता है, वो मैंने जाना है. तो जब जिंदगी के इस मोड़ में मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं
जो लोग रोज, आज तो आपने कुछ लोगों को देखा, लेकिन रोज ऐसे दिव्यांग रास्ते में, घरों में उनको बंद कर दिया जाता है क्योंकि उनको वो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। ऐसे भी पेरेंट्स भी हैं कुछ लोग, जो लोग अपने बच्चों पे गिव अप कर देते हैं कि नहीं कर पाएंगे, अभी ये ठीक है, कुछ नहीं हो सकता इनका। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे भी कहा है कि आप संस्था खोलो, हमारे बच्चों को रख लो। नाउ ये सब जब भी होता है तो मैंने सोचा कि कुछ तो ऐसा करना है जहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकूं। सिर्फ प्लेटफॉर्म ही नहीं, अभी आज जो कोई ने भी यहाँ पे परफॉर्म किया, सब लोगों को पेमेंट मिलेगा, तो ये उनके लिए एक इंडिपेंडेंस का जरिया है। ये कला दिखाकर, अपनी कला से नॉट ओनली लोगों को इंस्पायर करते हैं, बट लेकिन उससे वो उनका अर्निंग भी होता है। तो यही चीज़ थी कि कुछ चेंज लाना है सोसाइटी में, और उस चेंज के लिए कुछ लोगों को पिसना पड़ता है, तो वैसे ही तो रिवॉल्यूशन होता है। इन लोगों के लिए अलग अलग लोगों ने, अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग शब्दों रखे हैं, फिजिकली चैलेंज, हैंडीकैप, पर आपने जो रखा हुआ है डिफरेंटली एबल्ड, इसके ये सब किसने इजाद किया? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि मैं इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। मतलब अभी भी ये शो चल रहा था, तभी भी कुछ लोग मेरे पास आए थे, और कुछ आए थे और बोले थे कि नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग नाम रखा है, आप दिव्यांग क्यों नहीं बोलते हो? मैं इसलिए डिफरेंटली एबल्ड बोलती हूँ क्योंकि एक सच तो है कि उनमें और हम में डिफरेंस है, लेकिन एक सच ये भी है कि उनमें वो काबिलियत है जो हम में नहीं है। तो उनमें हम अगर एबल्ड है तो उनमें वो एक डिफरेंटली एबल्ड है, वो उनमें कुछ एबिलिटी ऐसी है जो डिफरेंट है। सो दैट इज द रीजन वाई ये डिफरेंटली एबल्ड है, इसलिए हम लोग उनको डिफरेंटली एबल्ड ही बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो। ये बात से सहमत हूँ। एक लड़की ने जो सुन नहीं सकती, उसने म्यूजिक सुने बिना बराबर स्टेप्स लिए, डांस किए, वो कोई नहीं कर सकता। हम अच्छा कान वाले भी नहीं कर सकते हैं, शायद नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए तो डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं ना, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होता है वो जानते हैं कि उन्हें कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है कि उस पर्टिकुलर इंद्रिय के बिना उन्हें सोसाइटी में सर्वाइव करना पड़ता है। आपने देखा एक हाथ नहीं है, आप कोशिश कीजिए कि आप गाड़ी को एक हाथ से चलाइए, हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हम नहीं कर सकते, जो वो कर सकते हैं। तो फिर वो डिसेबल्ड कहाँ से हुए? ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी नाम से भी मैं अगेंस्ट हूँ, इसलिए हमने तो ये रखा है कि वर्ल्ड DIS एबिलिटी, डिसएबिलिटी, डिस्कार्ड दिस, ऐसा रखा है हमने। थैंक यू। गीता और प्रीतेश, ये दोनों ने मुझे एज अ डांसर बनाया है। आई थिंक ये एक स्टेटमेंट में आपको समझ गया होगा कि कंप्लीट मेरा मैसेज क्या है। गीता थ्रू दृश्य मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और प्रीतेश ने मुझे उस हर एक प्लेटफॉर्म, उस हर एक इवेंट के लिए काबिल बनाया। गीता ने अपने फीडबैक से मुझे और ज़्यादा बेहतर बनाया। बस इसीलिए हम इसी तरीके से इवेंट करते रहे, नए नए परफॉर्मेंसेस बनाते रहे और लोगों को खुश करते रहे। सबसे पहले तो मैं गीता जी का बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो ये लोगों के सामने लेकर आई हैं, और इनका टैलेंट, मैं तो ये मानता हूँ इनमें हमसे ज़्यादा टैलेंट है, बिकॉज दे आर फेसिंग वेरी डिफरेंट चैलेंज देन व्हाट वी आर फेसिंग ऑन अ डेली बेसिस, और उससे ऊपर उठना कोई इनसे सीखे। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं इस ट्रस्ट का एक छोटा सा एक हिस्सा बन के इनके साथ एक कदम से कदम मिला रहा हूँ, सो दैट इन जो भी आर्टिस्ट हैं उनको एक प्रोत्साहन देने के लिए। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड थैंक यू टू गीता अगेन। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी इवेंट होते हैं, इवेंट के एक हफ्ते पहले से गीता, आप पकड़ लीजिए, हार्डली 1 घंटा गीता सोती होगी पूरे 24 आवर्स में। मैंने इतना तक उन्हें पूछा था कि आपके पास में कुछ वो 25th आवर है क्या? इतना काम करती है गीता इवेंट के वक्त में। सो यस, थैंक यू सो मच। गीता जी, एक सवाल और। भगवान ने, ईश्वर ने हमको 6 सेंस दिए, 6 सेंस दिए हैं, सुनना, टच है और बोलना, जवान, बहुत इस तरह। अब इन लोग हर एक के पास कोई ना कोई सेंस की कमी है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अलग अलग सेंस है, पर आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति जो आप इनके साथ कम्युनिकेट कर लेती हैं? मैं ये तो नहीं बोल पाऊंगी कि मेरे पास क्या शक्ति है,
मैं तो ये बोलूँगी कि इन लोगों से मुझे शक्ति मिलती है। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, इन लोगों से मुझे मिलती है, क्योंकि ये लोग मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। कोशिश हम यही करते हैं कि हम सबके लिए एक आवाज़ बने और उनके लिए एक सपोर्ट बने और उनके लिए ऐसा कुछ करें कि उनको ज़िंदगी में वो दुख ना देखना पड़े जो समाज उनको देता है। तो मेरी शक्ति वो लोग ही है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू रियली। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आप उन्हें देख सकें और अपने वैल्यूएबल कमेंट देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।